गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट पेपर है आपका बायोडाइवर्सिटी। इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एलगी फंजाई एंड आर्चिगोनियड्स के बारे में। और जो यूनिट का नाम है हमारा दैट इज़ माइक्रोब्स। इसमें हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। वायरसेस के बारे में पढ़ने से पहले आई विल शो यू वन स्मॉल क्लिप। इसको In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far, the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. From where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness, a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far, the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein. Today's learning objectives are: we will discuss about definition, historical background, general characteristic features, origin and virus component and shape. The definition है viruses की. Viruses are acellular, ultramicroscopic, disease-producing nuclear protein entities that can multiply only within living host. Acellular means without a true cell. They don't have a true cell. Ultramicroscopic, these are very small structures जिसको हमें special electron microscope की help से देखना पड़ेगा. And they cause disease-producing nuclear protein. It means they consist of nucleic acid, that is either DNA or RNA, and protein. And they can multiply only within living hosts, so they require only living hosts to multiply. Next point, they are small, obligate means compulsory, so they only lives inside the living host, so and causes disease, so that's why they are commonly known as parasites. And they are intracellular means within a cell, they lives within a cell. Next is virion. Virion is a complete infectious virus particle. एक जो complete virus का particle है which causes infection, उसको बोलते हैं virion. ये बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट से, और इसको कॉमनली बोला जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड. सो दिस स्ट्रक्चर, जो ये वायरस का स्ट्रक्चर है, इसका जो बाहर का पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड
this is called capsid. Proteinaceous part is called capsid, and internally in the central portion it contains nucleic acid, either DNA or RNA, which may be surrounded by, इसके बाहर से एक और एनवेल्प भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वायरल स्ट्रक्चर, दिस इज एन ओवरव्यू। तो जो वायरस का स्ट्रक्चर है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, दो चीज़ें होती है इसमें, न्यूक्लिक एसिड, आइदर DNA और RNA भी हो सकता है। इन एडिशन टू दिस इट मे बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड जैसा कि आपने +2 में पढ़ा है, जिसमें दो strands होते हैं। In addition to this, it contains capsid. So these are two parts which form viral system. इसमें क्या होता है, जो अंदर सेंट्रल पोर्शन है that is nucleic acid, then outer covering that is proteinaceous, प्रोटीन से बनी होती है जिसको बोलते हैं capsid। ये दोनों मिलकर बनाते हैं nucleocapsid. In addition to this, some viruses contain additional envelope. कुछ एक viruses के पास एक extra envelope होता है, वो बना होता है host के सेल की membrane से, जिनको वायरस इन्फेक्ट करता है। ये है envelope और this is protein membrane and this is called viral envelope. और ख़ास बात ये है कि ये सभी viruses के पास नहीं होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले इस फील्ड पे काम किया है सी चैम्बरलैन ने 1884 में पास्चर की लैब में। इन्होंने क्या किया, दे कंटेन मिक्सचर ऑफ, इन्होंने लिया एक मिक्सचर बैक्टीरिया और वायरसेस का। इस मिक्सचर को इन्होंने फ़िल्टर किया। दे डोंट नो एट दैट टाइम, उस टाइम वायरसेस के बारे में नहीं जानते थे, पर एक डिजीज़ कॉज करता है ये वायरस जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज़। तो उसका ग्राइंड करके एक मिक्सचर लिया, उसमें बैक्टीरियाज थे, वायरसेस थे, बट दे डोंट नो द नेम ऑफ वायरस दैट टाइम। तो ये जो फ़िल्टर पेपर इन्होंने फ़िल्टर यूज़ किया, ये जो फ़िल्टर था इट वाज अ बैक्टीरियल फ़िल्टर। ये बैक्टीरिया को पास नहीं होने देता था, बट जो वायरसेस थे दे कैन पास थ्रू देम। सो उस टाइम पे इन्होंने जब इसको फ़िल्टर किया, सो बैक्टीरिया सेपरेट हो गए। जो फिल्ट्रेट था उसमें सिर्फ वायरसेस थे, बट उस टाइम इन्हें पता नहीं था कि ये वायरसेस हैं, सो दे यूज़ द टर्म माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे फर्दर एक्सटेंड किया डॉक्टर दिमित्री इवानोस्की, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने टोबैको मोज़ेक जो डिज़ीज़ है, लीफ लिया टोबैको का जिसमें ये डिज़ीज़ हुआ था, उसको ग्राइंड किया, वैसे ही फ़िल्टर किया, और इस फिल्ट्रेट को उन्होंने फ्रेश हेल्दी प्लांट पे छिड़का, स्प्रे किया, और उन्होंने देखा कि जो ये फिल्ट्रेट था दैट वाज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल डिजीज़ इन न्यू होस्ट। तो वो जो फिल्ट्रेट था उसने वैसा ही डिजीज़ कॉज कर दिया ओरिजिनल होस्ट पे। सो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो ये फिल्ट्रेट है इसमें कुछ एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरियाज हैं जिनको हम आजकल वायरसेस बोलते हैं। नेक्स्ट, एडोल्फ मेयर, इन्होंने सबसे पहले रिपोर्ट किया था मोज़ेक डिजीज़ इन टोबैको प्लांट, जिसकी वजह से कर्लिंग होती है। कर्लिंग मीन्स रोलिंग ऑफ लीफ, एंड वेराइगेशन। वेराइगेशन में आगे पिक्चर है, उसमें आप देखेंगे वेराइगेशन मीन्स डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं पैचेस में। देन सेकंड इज़ बेजोनिक। बेजोनिक 1898, इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है वो पास कर सकता है अगर से और बैक्टीरियल फिल्टर से, जिसको इन्होंने बोला कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, विच मीन्स लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। दिस इज़ वेरी फेमस स्टेटमेंट, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय बेजोनिक। नेक्स्ट, स्टेनले वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, 1935 अमेरिकन केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले TMV को आइसोलेट किया है, और क्रिस्टलाइज किया है, एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्रिस्टलाइज टोबैको मोज़ेक वायरस। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन. दिस वाज developed by M. Knoll and E. Ruska. Twort is very important scientist. In 1915 he discovered bacterial viruses, जिनको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज, इनको डिस्कवर इन्होंने किया है, और इनका जो नाम है वो दिया है बैक्टीरियोफेज बाय D. Harrele in 1917. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट. इससे एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइनल एग्जाम में. सो दीज आर द पिक्चर्स. ये है ट्यूलिप प्लांट. इसमें जो आप डिफरेंट वेराइगेशन मीन्स मिक्सचर ऑफ कलर्स, रेड कलर, वाइट कलर देख सकते हैं आप. सेम वे टोबैको प्लांट में ये जो वेराइगेशन है, यू कैन सी दिस येलोइश पैचेस, ग्रीन पैचेस. सो दिस टाइप ऑफ coloration is commonly known as variegation. The concept of virus. जो concept of virus है, एडवर्ड जेनर का नाम सबने सुना है. he is a father of vaccination. he introduced the term virus in microbiology. जो माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले वायरस टर्म इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने एडवर्ड जेनर ने किया है. इसका मतलब होता है ग्रीक में पॉइजन और वेनम. एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले नोटिस किया कि जो मिल्क मेड्स हैं, जो गाय के साथ रहते हैं,
who were infected with cowpox, जिनको कि cowpox disease था, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए एडवर्ड जेनर ने क्या किया, एक जो छोटा बच्चा था हु वाज इन्फेक्टेड विद स्मॉल पॉक्स, ही ट्रीटेड दिस बॉय विद फ्लूइड जो काउ पॉक्स से इन्फेक्टेड मिल्क मेड थे उनके वेसिकल से, उनके जो फोड़ा था वहाँ से उन्होंने एक सैप लिया अंदर से उस फोड़े से, और उस सैप को, काउ पॉक्स के सैप को इस बच्चे को इंजेक्ट कर दिया। एंड ही फाउंड दैट कि जो ये फ्लूइड था काउ पॉक्स का जिसने इस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स, चेचक के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर दी। ही कॉल्ड दैट एज दैट पॉइजन विच वॉज ड्यू टू दिस काउ पॉक्स, इसने इस बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप कर दी स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। वायरसेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं? These are very important properties. First, they don't have independent metabolism. Metabolism हमें पता है, all the biochemical reactions which occur inside the living organism. Then next, their body consists of only nucleocapsid. It means they contain nucleic acid and protein code, जिसको capsid कहा जाता है. Absence of cellular structure. They don't have true cellular structures. That's why they are acellular in nature. No growth and cell division due to lack of metabolism. Metabolism नहीं होता, इसकी वजह से इसमें ना ही growth होती है और ना ही division होते हैं. Absence of respiration. They don't have any specific organs for respiration. Transmission ये खुद move नहीं कर सकते हैं. They don't have any organ of mobility. But ये transmit होते हैं with the agency of air or humans, animals. बहुत सारे एजेंट्स हैं जो इसको ट्रांसफ़र करते हैं. द नेक्स्ट, दे आर होस्ट स्पेसिफिक. वायरसेस आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक. इट मीन्स कि जो वायरसेस हैं वो अपने स्पेसिफिक होस्ट को ही इन्फेक्ट करते हैं. जैसे टोबैको मोजाइक वायरस है जो सिर्फ टोबैको प्लांट को ही इन्फेक्ट करता है. सो दे आर हाईली स्पेसिफिक. नेक्स्ट, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स. जो वायरसेस हैं उन पे एंटीबायोटिक्स का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. नेक्स्ट, म्यूटेशन. वायरसेस शो म्यूटेशन. म्यूटेशन आपने पढ़ा है, म्यूटेशन होता है सडन, लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस डेवलप इन एन ऑर्गेनिज्म. सो जो डीएनए है, डीएनए में जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं म्यूटेशन. सो अभी भी जो बायोलॉजिकल स्टेटस है वायरसेस का वो क्लियरली हमें पता नहीं है कि वो लिविंग है या फिर वो नॉन लिविंग है. सो इट इज़ स्टिल डिबेटेबल. नेक्स्ट, जो स्ट्रक्चर है वायरसेस का, जैसे हमने बार बार कहा कि इसमें बाहर की जो प्रोटीन कोट होता है उसको कैप्सिड बोलते हैं, अंदर इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है. सो इसमें जो सिमेट्री है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. कॉम्प्लेक्स होती है, हेलिकल होती है, आइकोसाहेड्रल है. कॉम्प्लेक्स है हमारे बैक्टीरियोफेज की, T2 बैक्टीरियोफेज की. एंड जो हेलिकल है, हेलिकल मीन्स हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस इज़ अ रॉड शेप वायरस जो है टोबैको मोजाइक वायरस. इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है देयर इज़ RNA. सो जो बैक्टीरियोफेज है दिस इज़ अ DNA वायरस बिकॉज इस जेनेटिक मटेरियल इज़ DNA. एंड टोबैको मोजाइक वायरस इज़ RNA वायरस बिकॉज इस जेनेटिक मटेरियल इज़ RNA. जो ये बाहर के प्रोटीन कोड्स हैं these are commonly the small portions are known as capsomeres and in combination these are commonly known as capsid. So this is human icosahedral. This is HIV virus, human immunodeficiency virus. It contains genetic material RNA. इसमें RNA genetic material होता है. It contains enzyme जिसको बोलते हैं हम reverse transcriptase enzyme, and it contains protein को जिसको बोलते हैं capsid. इसके अलावा इसमें बाहर से protein envelope extra होता है, extra protein envelope. So this is enough for today. Thank you very much. If you have any questions and queries, you can ask me without hesitation, and you can suggest me to improve this presentation better for next lecture. Thank you. Have a nice day.